So first question is the fourth. 12 joule of work is done against an existing electric field of points to take a charge of 0.01 coulomb from A to B. What is the potential difference between A and B? हमें given है that यहाँ पर 12 joule of work is done to take a charge from A to B. How much is the potential difference VB minus VA? Potential difference की definition क्या थी? Work done to move unit charge from one point to another. अगर यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर चार्ज क्यू वर्क डन टू यूनिट चार्ज from A to B. Work done to move charge Q will be work done to move charge Q from A to B is W is equals to Q delta V. अगर डेल्टा वी वर्क डन है यूनिट चार्ज के लिए तो क्यू चार्ज के लिए इट्स क्यू डेल्टा वी ये हमें गिवन है दिस इज 12 चार्ज इज गिवन 0.01 so delta V comes out to be 1200 volts. सब डायरेक्ट इसको कर सकते थे. Then you have next question. Two equal charges 20 into 10 raised to power minus 7 coulomb each are held at a fixed separation of 20 centimeters. Two charges they are held at a separation of 20 centimeters. A third charge of equal magnitude is placed midway between them, मतलब at a distance of 10 centimeters from each. It is now moved to a point 20 centimeters from both the charges. Means आपने इसको ऐसे displace किया such that it's at a distance of 20 centimeters from both the charges. You have to find the work done by the electric field during the process. Because electrostatic force is conservative. So we can say that work done will be equals to change in potential energy. So अगर मैं चार्ज को लेता हूँ Q, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले इनिशियल तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R और इसकी भी सेम initial potential energy of middle charge. अगर मैं R को 20 लेता हूँ तो you can say it's एक charge potential energy and 10 to so it's 4 kq square by R. Where R is 20. Finally distance R by 2 की जगह अभी R by 2 लिया था मैंने R by 2 is 10. Finally a distance R at 20. So final potential energy is
ट्वाइस ऑफ, तो पहले डिस्टेंस r बाय 2 था, अब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है, तो इट्स 2 q स्क्वायर बाय r. ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी into this is initial. You have to find the work done in the process. Work done is work done by electric force. It's minus delta E. It's U1 minus U2. U1 is 4kq square by r. So it's 2kq square by r. If you substitute the value, you will get the answer. कि आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, by finding the change in potential energy, you can find the work done. Third is an electric field एक्सक्यूज of मी सर, 20 newton force. हाँ जी, पूछो. वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने ट्वाइस क्यों किया था? ट्वाइस कहाँ पे क्यों? बिकॉज आप मिडल वाले की निकाल रहे हो ना पोटेंशियल एनर्जी इसकी, तो पहले इन दोनों की फिर इन दोनों की, तो दो पेयर है ना. मैं ओके इन सर, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 2, इसकी पूछूंगा ये भी के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 2, तो टोटल इज 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 2. आया समझ? यस सर। Next, an electric field of 20 Newton per coulomb exists along x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA, where A and B are given. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2 पॉइंट्स में. लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करूं, ए और बी, ए इज द रीजन, ए पार्ट करेंगे एंड बी इज द पॉइंट 4. डिस्प्लेसमेंट जो है, where is this position vector r? R is 4i plus 2j. Electric field is 20 Newton per coulomb along x-axis. Means 20 I cap. Potential difference बताना है. BB minus BA is integration of minus E dot S. So this comes out to be 20 into 4 and I dot J is 0. So potential difference is 80. समझ में आया कैसे किया? आपको जो भी 2 पॉइंट्स दिए होंगे ना, वहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा. जैसे बी पार्ट करें तो बी पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 और 2, मतलब आर इज 4i plus 2j, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 6 एंड 5, मतलब 6i plus 5j. तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा दैट इज r2 माइनस r1, rb माइनस r, इसको अगर हम rb लें, rb माइनस r इज 2i plus 3j. And work potential difference is VB minus VA is equals to minus of E dot S. Dot.
And this comes out to the minus 40 because I dot j is 0, I dot I is 1. तो आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालनी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ई डॉट एस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो then potential difference is written as minus e dot ds बट यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप सीधा ई डॉट एस कर सकते हो। क्लियर है? सर अगर वेरिएबल होगी तो स्मॉल डिजिट वो होंगे, स्मॉल पार्ट्स को तो ऐड कर डिस्प्लेसमेंट देंगे स्मॉल सभी को। लेनी पड़ेगी ना। हाँ फिर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लेनी पड़ेगी। आगे है ऐसा देख दो क्वेश्चन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। ओके सर। Consider a situation shown in previous problem. A charge of 2 into 10 raised to power 4 coulomb is moved from A to B. Find the electric potential energy UB minus UA. अब हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। आपको अगर UB माइनस UA बोलेंगे so this is Q into VB minus VA. तो this potential होती है potential energy per unit charge. तो U is Q into V. तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो VB माइनस VA। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया VB माइनस VA कैलकुलेट कर लिया। Q गिवन है मल्टीप्लाई कर दोगे तो विल गेट द आंसर। हो जाएगा ये। यस सर। Next is an electric field 20I plus 30J exists in space. If potential at a region is taken as 0, find the potential at 2 meter. इसको मान लेते हैं रीजन से पॉइंट ए और हमें पोटेंशियल बतानी है बी पॉइंट की। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। अगर मैं VB माइनस VA पूछूं तो किसके इक्वल होगा? E डॉट एस। इस केस में एस कितना आएगा? आर बी माइनस आर ए। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है तो 0 आई। इसके 2 2 माइनस 0 आई प्लस 0 से so basically 2I plus 2J। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल है 20I plus 30J कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा सिंपल यहाँ से। डॉट प्रोडक्ट ही यस सर। लेना है आपको तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो विल गेट द आंसर। अब इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to AX I cap कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। ए की वैल्यू 10 दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था AX I cap और ए की वैल्यू 10 दी है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल इट डिपेंड्स ऑन एक्स। हमें ए पॉइंट दिया है जिसकी पोटेंशियल दी है तो पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या गिवन है 10 एंड 20 तो आर ए कितना हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल दी है 0। फाइंड द पोटेंशियल एट अ रीजन। सेकंड पॉइंट ऑफ रीजन है दैट मींस आरबी इज
इसकी पोटेंशियल बतानी है तो फील्ड वेरिएबल है, तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? वीबी माइनस वीए। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। वीबी माइनस वीए इज ई डॉट डीएस। इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। वीबी माइनस वीए की वैल्यू, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को लेंगे dx आई प्लस dy j, और फिर उसे डॉट प्रोडक्ट लो। देखो क्या है आंसर। Because x varies from 10 to 0. हो रहा है सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमें dB निकालना है और VA 0 दिया। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, E is 10x I cap, and displacement let it be dx I cap plus dy j cap. So this comes out to be I dot j तो 0 हो जाएगा, 10x dx, x varies from 10 to 0, the minus 10, 0 minus 10 square by 2. So potential of the will do 500 foot. समझ में आया कैसे ये? कि जब आपको यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो डीएस को ऐसे लिख लो, dx I cap plus dy j cap। नेक्स्ट दिया पोटेंशियल वेरिएबल, दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। डी की वैल्यू दी है a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड। पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? जैसे E is equals to ई इंटू डी एस। partial differentiation, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z कांस्टेंट, dx जो है x कंपोनेंट माइनस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y और z कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, y z कांस्टेंट है तो x y की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ a y, x z की डिफरेंशिएशन। ये स्टेप देखो, मेरे समझ आ रहा? ये समझ आया कैसे कि सर रिपीट कर दो। हमारे पास ये है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई
ए वाई जेड ए एक्स जेड, ठीक है। वाई जेड कॉन्स्टेंट है, तो ये तीनों टर्म तो कांस्टेंट होगी, इसके डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई कांस्टेंट है, मतलब ए वाई तो बाहर आ गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए जेड कॉन्स्टेंट है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, तो ये क्या आ गया, ए वाई प्लस ए जेड। अब माइनस साइन था तो माइनस ए वाई माइनस ए जेड। आया समझ? यस सर। सेम रूल रहते हैं डिफरेंशिएशन के, सिर्फ अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे तो वाई और जेड कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूं तो कौन सी टर्म की डिफरेंशिएशन जीरो आएगी? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स विद जेड। रिस्पेक्ट टू वाई, ये जीरो हो जाएगी एक्स जेड, बिकॉज ये दोनों यस कांस्टेंट है। सर। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई? एक्स, और इसकी ए जेड, एक्स जेड। माइनस ए एक्स माइनस ए जेड। सिमिलरली जेड कंपोनेंट क्या होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू जेड करें तो? ए एक्स इसकी जीरो हो डिफरेंशिएशन जाएगा। जीरो, वाई जेड की ए वाई। ए वाई माइनस ए वाई एंड माइनस ए एक्स। अभी एक्स वाई जेड कंपोनेंट आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे? माइनस को कॉमन ले लो, ए को भी कॉमन ले लो, बिकॉज ए सब में है। तो माइनस और ए तो मैंने कॉमन ले लिया। एक्स कंपोनेंट इज वाई प्लस जेड, वाई कंपोनेंट इज देखो आ रहा है समझ जी? यस सर। Two charged particles having equal charges are brought from infinity within a separation of 10 centimeter. Increase in potential energy. जब वो infinite distance पे है तो potential energy is जीरो। zero. तो जो final potential energy है वही work done हो जाएगा। यस सर। तो final potential energy कितनी system of two charges की? Potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. यस सर। Initial potential energy at infinite separation. Zero. It's 1 by 4 pi epsilon naught. So work done against electric force is delta U. Is U2 minus U1. So work done is और चार्जेस सेम दिए, सो 9 into 10 raised to power 9, Q1 Q2 सेम ही गिवन है, तो Q1 square and separated by a distance of 10 centimeters, so 0.1 meter. क्लियर है? यस सर। ठीक है। Next is some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about the magnitude and direction of electric field? अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस में एंगल कितना बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स ऑलवेज 90.
बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब वर्क डन जीरो तभी आएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो चीजें यूज होनी है, दो कंसेप्ट। जैसे वर्क डन टू मूव अ चार्ज on equipotential surface is zero, which implies that electric field is perpendicular to equipotential surface. In second condition जो use होगी, that is electric field lines are always from higher to lower potential. Perfect. तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखें, हमें इस फॉर्म में भी है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ। हमें दिया इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट और इनके बीच में डिस्टेंस ऐसे दिया है 10 सेंटीमीटर। और ये एंगल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, सो 20 से 10 या 10 से 20। 20 से 10। 20 से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, कि 20 से 10। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस विल बी 10 साइन 30 और सीजीएस में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मैथमेटिकली वी कैन से दैट दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, मतलब V2 माइनस V1 इज, इसकी 10 वोल्ट, इसकी 20 वोल्ट, तो 10 माइनस 20 अपॉन dx, कितना डिस्टेंस बिटवीन देम, और सीजीएस में है तो -2 मीटर। So this comes out to be 10 into 10 raised to power 2, 2 into 10 raised to power 2। so 200 मीटर पर कूलम। और डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन कौन सी है? ये एंगल अगर 30 है, ये 90 है, तो दिस एंगल वुड बी 60। ये एंगल 120 डिग्री, मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री का होगा तो दिस वुड बी 60 डिग्री, प्लस तीनों का सम 90 है, तो ये 60, तो ये पूरा 120। So electric field makes an angle of 120 degree with the axis. Clear है ये? यस सर। So ये करके देखना भी ये वाले क्वेश्चन, कल करते हैं इसके आगे और थोड़े से। तो 8 या 9 क्वेश्चन आज के हैं, और कल कैपेसिटेंस एक्सक्यूज के मी लिए। सर, हाँ जी, पूछो। हम इसको एक्सियल लाइन अज्यूम करके वो फॉर्मूला के साथ नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, एक्सियल लाइन तो डाइपोल के लिए ना, ये डाइपोल तो है ही नहीं। वो तो ठीक है डाइपोल का ठीक है। फॉर्मूला है, इसमें तो डाइपोल दिया ही नहीं है।
ओके सर।